हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना सेठ। आज मैं आपके साथ ये आई लुक और ये लुक क्रिएट करूंगी फॉर दिस फेस्टिव सीजन दैट इज कमिंग अप, दैट इज दिवाली। सो मैं दिवाली में यूजुअली साड़ी पहनती हूँ, दिवाली हो या काली पूजा हो, इन बोथ द थिंग यू कैन कैरी दिस इजी लुक एंड विथ साड़ी इफ़ यू आर वेयरिंग ये। इसलिए मैंने न्यूट्रल आई कलर के साथ लुक बनाई हूँ। इफ यू नॉट वेयरिंग एनीथिंग सिमिलर टू माई कलर, स्टिल यू कैन यू नो achieve this eye look or this makeup look. You will really rock this party. तो चलिए देख लेते हैं कैसे मैं ये look create की हूँ. So I have properly moisturized my face and have put on lip balm as well. You can see how much oil or the serum or skin prep that I have done, because कोई भी मेकअप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए this is very very important to do your skin care very properly. So first I'll move on to my brows as usual. So brows के लिए मैं यहाँ पे वही same एल्फ का ब्राउ पेंसिल ली हूँ एंड ली हूँ मैं एक एल्फ का ब्राउ जेल, सो दैट जो भी मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो प्रॉपर जगह पे फिक्स रहे. दिस इज अ वेरी गुड product to do your brows if you want to make it a very long lasting. So I'll start on with my brows. First I'll spoolie my brows upward direction, then बहुत हल्के हल्के हाथों से I will fill up the sparse places that I have here. So and again comb it properly so that जो भी product आप deposit किए हैं it gets dispersed properly. So now I'll do my other brows. Next I'll take up this elf का brow wow brow, एंड इसमें बहुत छोटा सा एक स्पूली है, आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल, एंड इट इज इन द शेड ब्राउन. यस, एंड इसको भी हल्के हाथों से मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्राउ, देन गोइंग फॉरवर्ड एंड लास्टली filling. See, it gives a very prominent and hair-like strokes, and it sets your brows there forever. And it also has little brow like hair fibers. उससे क्या है, आपके ब्राउज अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा कम है, it will fill those parts. Next I'll move on to concealer. For concealer I'll be taking this Nykaa का concealer palette, and also I do have a little bit of dark circles nowadays, so I'll fill up those parts and will line up my brows. तो उसके लिए मैं ये रियल टेक्निक का एक ब्रश यूज करूंगी, कॉम्पैक्ट ब्रश. फर्स्ट आई विल टेक दिस लाइटर शेड एंड दिस शेड, द फर्स्ट शेड, एंड मिक्सअप करूंगी अपने हैंड पे, एंड देन विल लाइन अप दिस स्पेस. दिस इज वेरी skin like. I'm not doing something very extravaganza kind of thing, so that उसको बाद में blend करने में हमें ही दिक्कत आ जाए. And the top part of the brow as well. See, just it will clean the brow area and will give you a proper base and clean base in and around to do your makeup. See, done. And with the same brush, whatever is left, I will put those above my eyelid. Done. So the brow is done. I'll now move on to foundation. Before that, I'll put on primer, and my new current favorite primer is this Mars ka
ज़ीरो प्राइमर पोर परफेक्शन। ये मैं मेरे नया नायका हॉल में आपको दिख जाएगा फॉर दिस फेस्टिव सीजन। आई एम यूजिंग दिस प्राइमर since Durga Puja and I fell in literally love with this. It really sucks up the excess oil because ये सिलिकॉनी है। and इसको मैं ऐसे पुश करती हूँ अपने फेस के इन एंड अराउंड and it literally gives a blurry effect turant to my face। and now I will, whatever is left behind in my hand, I will place it in and around my faces। but start placing the primer from the place where it is most needed। okay, now next I'll move on to the next step। this Nykaa का palette again to conceal in and around my eyes। जैसे मैंने कहा मेरे थोड़ा सा रेडनेस है, डार्क सर्कल्स है, रेडनेस नहीं कहूँगी, डार्क सर्कल्स है। फॉर दैट मैं ये रेड, ये जो डार्क शेड है, इसको बहुत हल्के हाथों से अपने आईज के आसपास लगाऊंगी। वेरी लिटिल, जहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा कलर करेक्ट का ज़रूरत है, बिकॉज you'll be keeping this makeup for a long time and it might happen कि आपका तब तक थोड़ा सा ग्रे होने लगे when you'll do the long time रखोगे आप मेकअप को। सो मैंने बहुत हल्के हाथों से यहाँ पे आसपास कलर करेक्ट किया। आफ्टर दैट आई मूव ऑन टू फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए यूज़ करूँगी मैं ये बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन इन द शेड W064। इसका बहुत अच्छा कवरेज है। मैं जस्ट 2 पंप एज ऑफ नाउ लूँगी। एंड फॉर ब्यूटी ब्लेंडर आई विल बी यूजिंग दिस शीन का ब्यूटी ब्लेंडर। जस्ट लुक एट हाउ ह्यूमंगस साइज दिस इज़। एंड फाउंडेशन को भी मैं थोड़ा सा वार्म अप कर लूँगी अपने हैंड पे। एक तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा ऐसे वार्म अप करने से, एंड सेकेंडली ये अपने फाउंडेशन को बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा एंड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी व्हेन यू वार्म अप द थिंग बिटवीन योर फिंगर, इसका वैसा ज़्यादा वो और जाके आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता है। सो क्विकली आई ब्लेंड। ये फाउंडेशन का एक ही ड्रॉबैक है, इट सिट्स डाउन वेरी क्विकली, इसलिए और भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वार्म अप दैट फाउंडेशन ऑन द बैक ऑफ योर हैंड सो दैट ये थोड़ा सा इजीली ब्लेंड हो जाए। टू मी आई थिंक दिस फाउंडेशन इज लिटिल बिट trickier to blend। see, to me I think I need another pump, क्योंकि और थोड़ा coverage, क्योंकि festive है and we all want to be a little bit more of a thing। अगर आप कहीं दिवाली पार्टीज में जा रहे हैं, सभी बहुत ज़्यादा अच्छे से डेक्ड अप होके आते हैं। अगेन इफ़ यू कैन सी, मैं सारा फाउंडेशन अपने सेंटर ऑफ द फेस पे ही प्लेस कर रही हूँ। देन आई एम मूविंग इट आउटवर्ड और ब्लेंडिंग इट आउटवर्ड। सी, एंड ये बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर से एक और हेल्प हो जाता है, 1-2 डैब से ही आपका पूरा फेस बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इट डजंट टेक मच टाइम, अदरवाइज मैं यूजुअली ये ब्लेंडिंग पार्ट ऑफ कैमरा ही करती हूँ। सी, नाउ एट दिस पॉइंट फाउंडेशन को मैं थोड़ा सा सिट इन करने दूंगी फेस में। एवरी स्टेप टू मेक अ मेकअप वेरी लॉन्ग लास्टिंग, एवरी स्टेप you need to let it seep down into your skin and sit on your skin। So I'll do that। Before that I'll just quickly powder a little bit। मैं ना ये अपने आईज एरिया को छोड़ के पाउडर करूँगी because I have not done concealer yet। So मैं अपने
पाउडर, एक बड़ा सा रियल टेक्निक का ब्रश ली हूँ एंड आई एम टेकिंग एनी लूज पाउडर. आई एम टेकिंग दिस पॉन्ड्स का लूज पाउडर एंड आई विल, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है, इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग ऑयल एंड देन बाकी प्रोडक्ट ब्लेंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए. सो आई जस्ट पाउडर्ड लाइटली एंड विल लेट इट सीप. टिल देन आई मूव ऑन टू माई आई मेकअप. सो फॉर आई मैं अगेन थोड़ी देर पहले मैंने कंसीलर लगाया था, तो आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ द पाउडर एंड आई विल सेट, अगर कोई लाइन्स पड़ा हो तो, एंड देन I'll move on to the shadow. For shadow, I'll be using this Smashbox का covered short petal metal eyeshadow palette. ये एक बहुत अच्छा versatile. First of all, look at the packaging. बहुत ही सुंदर एक packaging है and look at the colors. It has a very beautiful not earthy browns. So already I'm wearing a very shiny kind of sari with a pink in it, so I'll not go for a monochromatic look. I'll go for a little bit dark and muted eyes. So for that मैं सबसे पहले ये light shade जो है I'll pick up that light, and mostly यहाँ पे foily है, so obviously again this is Diwali look and Diwali में everything needs to be shiny and blingy to me. सो मैं सबसे पहले ये शेडो पिकअप करूँगी एंड डस्टिंग ऑफ द एक्सेस. मैं अपने क्रीज एरिया को बहुत अच्छे से हाईलाइट करूँगी. आफ्टर द क्रीज एरिया आई विल मूव ऑन टू दिस डार्क ब्राउन शेडो. अ लिटिल गोज अ लॉन्ग वे. मैं सेम ब्रश के हेल्प से पिकअप करूँगी ऑन द टॉप. दिस इज़ अ टेपर्ड इफ आई शो इट, it's a tapered brush, and I'll drop this shade at the edge of my eye and will now take it in. Very light handedly I will blend it, but very light handedly. I want the color to be prominent at my edge. Again I'll do the same. I'll pick up this dark shadow, dusting off the excess. I'll drop it here and with very light hand I'll move it a little bit in. See, it's done. And then I will take a very deep tapered kind of brush and I'll take up this darker foil kind of shadow and we'll place it just in between the eye socket, leaving it a little bit, just merging the last color and this color. Again I'll pick up this and we'll drop it in. I'll not blend now, blending part I'll do later. Now with another similar brush I will take this lightest rose gold, which is very similar to my sari. I'll take up that shade and will drop again a little bit from the edge to the inner corner, leaving a little bit space, a very little space. And again lastly this light highlightery kind of color, with the help of your finger place it at the very inner corner of your eye. See, not to worry, I have not yet done the concealing part, that's why. Now I'll take that same very same brush and pick up any light shade or shimmery shade. आई एम टेकिंग द सेम ब्रश, इसलिए मैं ब्रश में जो डार्कर शेड है ना उसको जस्ट हल्का रिमूव करने के लिए मैं ये शेड ली हूँ. एंड नाउ आई विल ब्लेंड इट वेरी
lightly without dispersing the colors, yet blending everything so that it looks very cohesive to it. सो शैडो के बाद मैंने बहुत हल्के हाथों से एक लाइनर ड्रॉ कर लिया है. नाउ आई विल मूव ऑन टू द कंसीलर पार्ट. आई विल टेक दैट सेम नायका का पैलेट एंड विल टेक द कंसीलर शेड दैट आई हैव. यहाँ पे ये वाला शेड मेरा एकदम प्रॉपर कंसीलर. सो आई विल टेक दैट विथ फिंगर, ये दोनों शेड मिला के and will dab under my under eye part. इससे क्या होता है, if you are having any fallout or so, क्या है, बेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है. अगेन इफ़ यू आर इन अ हरी, अब थोड़ा बेस को बैठने का भी टाइम दे दिया. एंड वॉट एवर इज लेफ्ट आई विल यूज इट हियर, लिटिल बिट ऑन माई नोज एंड यहाँ. एंड विद द ब्रश, मेरे हाथ में भी जो बचा था, एवरीथिंग आई विल नाउ ब्लेंड थिंग्स. मैं स्वाइपिंग एंड सर्कुलर मोशन से ब्लेंड करूँगी. देन द फोरहेड पार्ट, आई थिंक मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मस्कार लाइनर लग गया है. एनीवे, मैं इसको भी ब्लेंड कर लूँगी एंड इन एंड अराउंड द फेस. सो माई कंसीलर इज़ डन. आपने देखा था थोड़ा सा लाइनर सूखा नहीं था, ब्रश में आ गया था. आई हैव फिक्स्ड इट. सो क्या किया मैंने, थोड़ा सा अगेन कंसीलर लेके मैंने, नॉट टू वरी अगर कुछ भी इधर उधर मेकअप का होता है, एवरीथिंग इज़ फिक्सेबल. सो मैं ये अगेन पॉन्ड्स का मैं दिखा देती हूँ आपको, इसके ढक्कन में मैं डाल के रखती हूँ. पॉन्ड्स का ये नेचुरल ग्लो वाला रोज़ वाला पाउडर मैं अभी बहुत हैवी हाथों से अपने अंडर आइज को सेट करूँगी, क्योंकि इस पार्ट में देयर इज़ कंसीलर एंड सबका होता है विथ टाइम कंसीलर थोड़ा सा टेंड टू क्रीज अवे. सो मैं जो जहाँ मेरा क्रीज लाइन पड़ता है, एक्सक्लूडिंग दिस चिन पार्ट, आई हैव लेफ्ट उसको वहाँ पे अभी भी क्रीम प्रोडक्ट्स लगेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं पूरा फेस को बहुत हेवी हाथों से पाउडर कर दिया. एक्सेस पाउडर कैन बी डस्टेड ऑफ एनी डे एनी टाइम. सो नाउ आई विल मूव ऑन टू कॉन्टोर. कॉन्टोर के लिए मैं ये सेम ही नायका वाला ब्रश पैलेट लूँगी एंड विद द हेल्प ऑफ एनी ब्रश मैं ये जो डार्कर शेड है उसको पिकअप करूँगी बहुत थोड़ा. एंड मैं ये अपने चिन बोन एरिया में इसको प्लेस करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी. नॉट टू वरी, ये बाद में ब्लश के साथ भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा. You can take a angular brush, but with this brush मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा precise application होता है and it gives me a good hold. And whatever is left मैं इसको back of the hand में dust off करके थोड़ा सा अपने forehead, क्योंकि मैं अभी नया ये क्लीन बन ट्राई कर रही हूँ. आई डोंट नो कैसा लग रहा है फेस पे. सो इसी ब्रश मैंने जो कॉन्टोर लगाया है उसको मैं एक पाउडर कॉन्टोर से सेट करूँगी. दैट इज़ दिस LA कलर्स का हाईलाइट एंड कॉन्टोर. वही सेम ब्रश लूँगी एंड पिकअप करूँगी ये कॉन्टोर शेड एंड अपने कॉन्टोर एरिया को
सेट करूँगी। यू कैन डायरेक्टली सेट विथ एनी अदर पाउडर, बट मैं सोचती हूँ कॉन्टोर को अगर कोई ब्रॉन्जिंग पाउडर से सेट करे तो कॉन्टोर एनहांस भी होता है एंड ऑल्सो पाउडर से सेट भी हो जाता है, क्योंकि अगर नॉर्मल पाउडर से सेट करेंगे अगेन यू हैव टू कीप दैट कॉन्टोर अ लिटिल बिट डार्क, क्योंकि नॉर्मल पाउडर से वो कॉन्टोर फिर लाइटन अप भी हो जाता है. So I usually do a C kind of thing here, and whatever is left मैं अपने forehead पे लगाऊंगी. Then I'll move on to blush. So for blush मैं यूज़ करूँगी ये अर्बन डिके का blush पैलेट. इसमें बहुत सारा कलर्स है, तो मेकअप भी मैंने थोड़ा डस्की रखा है एंड आई यूज़ a little bit of mix of these two blushes. थोड़ा सा म्यूटेड पीच एंड पिंक शेड में एंड हेवी हैंड से ये ब्लश यूज करूँगी. एंड आई हैव अ फ्यूलर काइंड ऑफ फेस, सो मैं यूजुअली ब्लश को यहाँ प्लेस करती हूँ सो दैट इट गिव्स मी अ इल्यूशन ऑफ अ slimmer face. And little bit on the nose, and that's it. So again I'll take a powder brush. Now I will powder. I'll take little bit of powder, and जो भी excess powder है, या फिर if you think your T-zone is getting a little bit oilier or something like that, you can repeat that powder. For the lower lash, I'll take this K Beauty ka eyeshadow stick. This is very matchy to my sari. Take a little bit and we'll glide it from outer to the half of my eye, so that थोड़ा color भी आ गया, थोड़ा matching भी हो गया. And with the help of any pointy tipped compact brush, मैं इसको थोड़ा सा इसका हार्श एजेस ब्लेंड करूँगी. यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है. एंड लास्टली थोड़ा विंग, ऑब्वियसली साड़ी के साथ. ये जो विंग मैंने बनाया था ये प्रॉपर फिनिश नहीं था, इसको मैंने विंग बना दिया. एंड दैट्स इट. होप दोनों साइड के विंग एक समान बना है. That's it. I'll take a quick shower in face mist, face powder, and for mascara I'll go with this Maybelline का Sky High mascara and a thick coat. मैं ना lash नहीं लगाऊंगी. This will be a whole night thingy for me, and lash seemed a little bit heavier मुझे लगता है, and घर का पूजा and all में I do not want to make myself heavy. मेकअप मैंने heavy रखा है, but eyes को मैं थोड़ा rest दूंगी. And already I am wearing lens, so उतना ज़्यादा change मुझे नहीं करना है. So that is it. For lipstick I'll choose a color. For lipstick I'll be choosing ये Maybelline का creamy mattes, and ये है in the shade 676 East Village Road. This is a very dusky kind of, I'll keep a a creamy matte kind of finish. Obviously we will be eating a lot, we need to reapply again. हम लोग बातें भी बहुत करेंगे, तो उस हिसाब से लिप्स हाइड्रेटेड भी रखना चाहिए. सो लेट्स सी ये कलर कैसे जाता है. Wow, see how easily it glided, and one coat. It gives a very good color payoff.
you can outline this with a red lip liner. मैं उसको avoid की. Yeah, seems fine with this look. You can add a little bit of, you know, red to it. That's your choice. I will quickly add on a little bit of jewelry. You can wear gold with this, or you can wear, you know, trendy big earring with it. So that's it. This is my proper, you know, Diwali look. How is this look coming up and कैसे लग रही हूँ मैं? You can add gold. मैं usually तो gold ही पहनूंगी for this video. I'm trying this kind of jewelry. This is also going fine. And with a top knot, I have put on a bow in it. एंड इट सीम्स अभी तो पूरा ठंडा आया भी नहीं है, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होता है, यू कैन यू नो कैरी ऑन विद दिस काइंड ऑफ हेयर लुक. कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए, एंड डू ट्राई दिस टाइप ऑफ लुक. इट इज़ वेरी easy and easy peasy, you know. You can create this at a swift. So till then, wait for my next video. Bye.